Good morning, students. Good morning, ma'am. So, day before yesterday, we had seen about the classification of amino acid. Do you remember that? Yes, ma'am. Yes. So, this classification, it is mainly divided into 7 groups that I told you on basis of structure. Okay. So, the first one which we had seen that day, amino acid with the aliphatic side chain. So, in this we had seen that these are mono amino acid, monocarboxylic acids. Okay. So this group consists of simple amino acids like glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine. These amino acids, they are included in this aliphatic side chain group. Okay. So the last 3 amino acid means valine, leucine, and isoleucines. Uh, these contain uh, branched aliphatic side chains, and so they are referred as the branch chain amino acids. Then the second group which we had seen, that the hydroxyl group containing amino acids. So serine, then threonine, and the tyrosine. These are the hydroxyl group containing amino acid. So tyrosine, it is aromatic in nature, and it is usually considered under aromatic amino acids. Okay. Then the third one is the sulfur containing amino acid. So sulfur containing amino acid was cysteine. So cysteine with sulfhydryl group and methionine with thioether group. They are 2 amino acids which are present in this. So beside this, we had seen cysteine, which is the another important sulfur containing amino acid, and it is formed by uh, condensation of 2 molecules of cysteine. Okay. Then the next one which we had seen, that was the acidic amino acid and their amides. So aspartic acid and the glutamic acid, these are dicarboxylic monoamino acids, and asparagine and the glutamine. These are amide derivatives of them. So all these 4 amino acids, they are they contain particular codon for protein synthesis process. Okay. Then the fifth one was the basic amino acids. So 3 amino acids, that is lysine, arginine. Arginine, it contain guanidino group, and histidine, which contain imidazole ring. So these are dibasic monocarboxylic acids, and they are basic in nature. The next one which we had seen, that was the aromatic amino acid group. So phenylalanine, then tyrosine, after that tryptophan. So these are the aromatic amino acids. So do you remember that one? Do you understood this classification? Yes. Do you understood that classification? Yes, ma'am. Okay. Now the next topic of today's topic is the structure of protein. Okay. So as we know, proteins, they are the polymers of amino acids. The structure of protein, it is quite complicated. And because of it, it is divided into 4 level of organization. That is primary, secondary, tertiary, and quaternary structure. So primary structure, how it will be? It will be simple, linear. Means कैसे रहेगा वो? तो straight linear रहेगा. This one will be primary. Okay. So linear sequence of amino acid, they will form backbone of the protein.
पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनती है तो उसका बैकबोन बनाने का काम कौन करेगा? तो प्राइमरी प्रोटीन करेगा। अब सेकेंडरी प्रोटीन कैसे होता है? तो सेकेंडरी प्रोटीन विल बी लाइक दिस विल बी द सेकेंडरी प्रोटीन। तो special arrangement of protein by twisting of this polypeptide chain we can find in the secondary structure. What about the tertiary? So tertiary one, look here, it will be like this. This will be the tertiary structure. So here three-dimensional structure with the functional protein we can see in the tertiary. And what about the quaternary? So quaternary, it will be again quite complicated, like this. This will be the quaternary structure. So in this way, this quaternary structure contains some of the protein which are composed of two or more polypeptide chains, and they are considered as their subunits. So spatial arrangement of this subunit, it is known as quaternary structure. Okay, so these are the four important structures: primary, which will be linear; secondary, which will be twisted; okay, the tertiary, three-dimensional; the quaternary, in which this three-dimensional structure or this polypeptide chain, it consists of subunits, and which we considered as the quaternary structure. So the structure, this structural hierarchy of protein, it is comparable with the structure of building. अगर हम जैसे बिल्डिंग का जो है उससे कंपैरिजन अगर करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर का, तो हमें क्या यानी कैसे, किस वे से हम कंपेयर कर सकते हैं? तो अमाइनो एसिड्स जो है इसको हम ब्रिक्स से कंपेयर करते हैं। उसके बाद में जो वॉल होती है तो उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो वो ट्विस्ट जो रहेगा रूम में, तो उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फुल फ्लेज सेल्फ कंटेन रूम जो रहेगी तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर रहेगा। और बिल्डिंग अगर उसमें जो है तो कुछ एक जैसे या फिर थोड़े से अलग अलग अगर रूम्स है तो वो क्या हो जाएगा? तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इजीली जो है तो रूम या बिल्डिंग और ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, we can compare this protein structure with the structure of building. So we know that building, it is made up of bricks. So here amino acid, it is considered as a brick. Then wall of it is considered as a primary structure. Whatever curvature will be there, that we consider by the secondary structure. Full-fledged self-containing room, it is considered as a tertiary structure, and different rooms or similar rooms which will be present in the building, that is considered as a quaternary structure. So in this way, we can easily compare and we can easily understood about the structure of protein. This term protein, it is generally used for polypeptide containing more than 20 amino acids. अगर 20 amino acids से ज्यादा amino acids present है और उन्होंने polypeptide chain बनाई है तो हम उसको प्रोटीन बोलेंगे। ओके, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं अभी, तो पॉलीपेप्टाइड वी कैन कॉल पॉलीपेप्टाइड एज इफ few hundreds amino acids will be present, then also we call it as a polypeptide. And तो ये जो प्रोटीन है ये हम कब यूज करते हैं? तो जब असेंबली है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की and they consist of the quaternary structure, then we can say that it is a protein.
तो व्हाट इज प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें क्वार्टरनरी हमको जो है तो स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा. तो नाउ लेट्स सी in brief about this primary structure, secondary structure and the tertiary structure of protein. Okay, so firstly we will see about the primary structure of protein. So just I had told you it will be linear in structure. Each protein they has a specific sequence of amino acids, and this specific amino acid they will be determined by the genes which are present in the DNA. So this primary structure of protein, it is responsible for its function only. ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? तो फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. मेजॉरिटी ऑफ जेनेटिक डिसीजेस जो है तो अगर इसमें एबनॉर्मलिटी आती है, ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस में एबनॉर्मलिटी आती है, तो डेफिनेटली जो सीक्वेंस है प्रोटीन का उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी और जिसकी वजह से फिर हमें जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं. तो अमीनो एसिड कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन it will determined by physical as well as chemical properties. अमीनो एसिड का कंपोजिशन जो है प्रोटीन में वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है तो उसको डिटरमाइन करता है. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइड बॉन्ड? तो लेट्स सी अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड. तो वी हैड सीन दैट अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ टू एंड. अमीनो एसिड में टू एंड्स होते हैं, एक कार्बोक्सिल एंड होता है और दूसरा एंड होता है अमीनो ग्रुप, है ना. या हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो ग्रुप्स है, एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है. तो अमीनो एसिड एक दूसरे को जो है तो वो होल्ड जो होंगे जब वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा या फिर हम ऐसे बोले कि प्रोटीन बनाएगा, तो उस समय में यहाँ पर जो है जो लिंकेज होता है तो वो कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, वो लिंकेज बनाएगा. तो ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये जो है तो दिस बॉन्ड इट विल एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल. ये सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है दो अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए. ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? लेट्स सी नाउ. तो जब अमीनो ग्रुप एक अमीनो एसिड का ये कंबाइन होता है कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड से, तो उस समय में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब एक अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप रहेगा या अमीनो ग्रुप रहेगा और दूसरे का जो है तो कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा, तो वो जब कंबाइन होंगे तो दैट टाइम दे विल फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड. अब यहाँ पर डाइपेप्टाइड जो है तो इसमें दो अमीनो एसिड्स रहेंगे और एक ही पेप्टाइड बॉन्ड जो है तो उनके बीच में बनेगा. पेप्टाइड्स जिसमें मोर देन 10 अमीनो एसिड्स रहते हैं तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं. जब 10 से ज्यादा यहाँ पर जो है तो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहेंगे तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं. डू यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's see structurally how this peptide bond will be formed. Okay. Let's take one amino acid.
Okay, so consider as this one is the amino acid 1, and if we consider this as a amino acid 2, तो 2 amino acids are there. See, यहाँ पर जो है तो ये आयोनाइज्ड हो चुके हैं, ठीक है, R1 R2 that may be any methyl group, ठीक है। इस तरह से ये 2 अमाइनो एसिड है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ये जो है इसमें से और हमारा एक जो ऑक्सीजन है तो ये रिमूव हो जाएगा, यानी डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर विल बी देयर, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा एंड इट विल देन फॉर्म what it will form, so it will form the dipeptide bond. So here see, एक जो है तो अमाइनो ग्रुप में से ये जो अमाइनो ग्रुप था इसमें से एक हाइड्रोजन, ये एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये जो है तो ये रिमूव हो जाएगा और वो रिमूव होकर जो है तो क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। It will be removed and because of it, it will form the dipeptide bond. इस तरह से डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। Do you understood this one? Yes, ma'am. Okay, ठीक है। तो इस वे से जो है यहाँ पर डाइपेप्टाइड बॉन्ड बना है। अब यहाँ पर as we had seen just one time revising ना कि how this dipeptide bond will be formed. So when one amino group of one amino acid, it will combine with the carboxyl group of another amino acid, so then it will form the peptide bond. And during dipeptide bond, just now we had seen here this 2 amino acid will combine and there will be only one peptide bond will be present. Okay, so what are the characteristics of this peptide bond? So the peptide bond, they are rigid and they have a partial double, उनमें जो है तो partial double bond रहेगा। ये जो है जनरली ये एग्जिट जो रहेंगे तो they will be present in the or exit in the trans configuration. यहाँ पर जो है तो we can see one amine group and one CH means carboxyl group, but that amine group and the C carboxyl group we will see like in the form of C double bond O, C and NH. ये फॉर्म में जो है तो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है तो फॉर्मेशन होगा, here hydrogen bond will be formed. Then the next point is how can we will write this peptide structure. So conventionally peptide chain they are written from free amino end, यानी जहां पर जो है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो हम जो है वो एन टर्मिनल कहा जाएगा और एन टर्मिनल रेसिड्यू जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और कार्बोक्सिल एंड जो है तो कार्बोक्सिल एंड दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड में रहेगा। तो अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है तो वो
एन टर्मिनल से जो है रीड किया जाएगा और एंड कहाँ पे होगा, तो सी टर्मिनल पे एंड होगा। तो यहाँ प्रोटीन बायोसिंथेसिस जो है ये प्रोसेस जो है, तो ये भी स्टार्ट एन टर्मिनल अमाइनो एसिड से ही होती है। ओके, डू यू अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now what about the secondary structure of protein? अब हम secondary structure of protein के बारे में देखेंगे। तो conformation of polypeptide chain by folding or twisting जो है, तो that is referred as secondary structure। हमने देखा कि अगर वो spiral है, यानी इस तरह से जो है तो twisted है, तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी प्रोटीन। अब ये जो सेकेंडरी प्रोटीन है, तो यहाँ पर अमाइनो एसिड्स जो हैं दे विल बी लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। वो जो सीक्वेंस है उसमें बहुत ज्यादा क्लोज रहेंगे। फिर हम जो है सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसको दो इसमें डिवाइड करते हैं। एक है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा होता है बीटा शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर, ऐसे दो इसमें इसे डिवाइड किया गया। जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रामचंद्रन, तो उन्होंने एक उनका जो है तो कंट्रीब्यूशन रहा है किसमें, तो ये जो अरेंजमेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन की, स्पेशल पॉलीपेप्टाइड चेन की जो अरेंजमेंट है उसमें उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अल्फा हेलिक्स जो है ये मोस्ट कॉमन स्पाइरल स्ट्रक्चर जो है तो प्रोटीन का हमें देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो है तो ये रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड अरेंजमेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन का। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है तो ये प्रपोज किया था पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने और कॉरी नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये स्ट्रक्चर 1951 में जो है तो प्रपोज किया गया था, और ये जो है तो वन ऑफ द माइलस्टोन जो है तो कंसिडर किया गया बायोलॉजिकल रिसर्च में और बायोकेमिकल रिसर्च में। जितने भी बाद में जो बायोकेमिस्ट्री जो है तो उसकी स्टडी जो हुई है तो ये स्ट्रक्चर के बाद में ही हुई है। तो इसके साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, तो साइलेंट फीचर्स जो है तो वो हमको जो देखने के लिए मिलेंगे अल्फा हेलिक्स के, तो ये टाइटली पैक्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें अमाइनो एसिड चेन जो है तो वो आउटवर्ड साइड में जो है प्रेजेंट मिलेगी, बीच में सेंट्रल एक्सिस रहेगा। उसके बाद में अल्फा हेलिक्स जो है तो ये स्टेबलाइज्ड होता है बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो स्टेबलाइज रहेगा। ये जो है तो हाइड्रोजन एटम जब पेप्टाइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम जो है तो जब कार्बन पेप्टाइड को जो है अटैच होगा तो ये स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो स्टेबलाइज रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो है तो ये वीक है, लेकिन ये जो है तो स्ट्रॉन्ग बनता है जब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहेगा तब। उसके बाद में जो पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पॉलीपेप्टाइड चेन के जो बॉन्ड है उसे छोड़ा जाए तो बाकी के सभी जो है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। हर टर्न जो होता है उसका हर टर्न जो होता है तो उसमें 3.6 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और वो 0.54 नैनोमीटर इतना डिस्टेंस जो है तो ट्रेवल करता है। स्पेसिंग जो है अमाइनो एसिड्स की वो 0.15 नैनोमीटर इतनी होती है। डबल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है तो ये स्टेबल कन्फर्मेशन होता है जो कि
लोएस्ट एनर्जी से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इसके अलावा जो है तो और हमें फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है तो ये मोर स्टेबल रहेगा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है तो इस तरह से अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये कौन से साइड में ट्विस्टिंग हुआ है तो ये लेफ्ट साइड में होगा, तो ये लेस स्टेबल रहेंगे। और ये राइट साइड में ऐसा ट्विस्टिंग है तो दे विल बी मोर स्टेबल। उसके बाद में जो है तो कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में। बहुत से जैसे एसिडिक जैसे एस्पेरिन है, ग्लूटानिन है, उसके बाद में बेसिक जैसे लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन है, ये जो है तो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में हमको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज अबाउट द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में हुआ प्रोटीन के। तो लेट मी रिपीट वन टाइम कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, मैंने कहा कि इसमें जो है तो हमको फोल्डिंग्स दिखेंगे, है ना, ट्विस्टिंग दिखेगा। और ये जो है तो हमने क्या कहा कि इसको दो इसमें डिवाइड किया गया है, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा शीट। तो बीटा शीट अपन थोड़ी देर में देखेंगे। अल्फा हेलिक्स जो है तो अल्फा हेलिक्स ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलता है प्रोटीन में। और ये जो है तो रिजिड स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड चेन का। उसके बाद में मैंने आपको इसके कुछ साइलेंट फीचर्स बताए। तो उसके साइलेंट फीचर्स क्या है? अल्फा हेलिक्स जो है तो ये टाइटली पैक्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें अमाइनो एसिड जो है तो वो आउटवर्डली हमको प्रेजेंट मिलेंगे। उसके बाद में मैंने कहा था कि अल्फा हेलिक्स इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द peptide N and the oxygen it will attach to the peptide C. हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है तो ये इंडिविजुअली वीक है बट कलेक्टिवली जो है तो दे विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टेबलाइज द हेलिक्स। ऑल थर्ड अपन ने फीचर ये देखा था कि ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड द लास्ट पॉलीपेप्टाइड चेन तो दे विल पार्टिसिपेट इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि ईच टर्न ऑफ दिस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर it contains near about 3.6 amino acids and they will travel the distance of 0.54 nanometer। यहाँ पर जो है तो जो दो अमाइनो एसिड के बीच में स्पेस होती है दैट इज द 0.15 नैनोमीटर। देन फिफ्थ फीचर हमने देखा था कि अल्फा हेलिक्स जो है तो इट विल बी स्टेबल कंफर्मेशन फॉर्म बाय स्पॉन्टेनियसली विद द लोएस्ट एनर्जी। सिक्स्थ हमने देखा था कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इट विल बी मोर स्टेबल देन द लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। देन सेवंथ हमने देखा कि सर्टेन अमाइनो एसिड्स disrupt the alpha helix structure. Large number of acidic or the basic amino acid they are interfere in this alpha helix structure. This is all about the alpha helix. Now what about the beta plated sheet? तो ये सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हमने बीटा शीट कहा था। तो ये पॉलिंग एंड कॉरी नाम के ही साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर किया है। ये जो है तो दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स जो होते हैं पेप्टाइड चेन के, फुल्ली एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन के, उससे बने होते हैं। तो बीटा शीट में हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होगा तो वो किससे फॉर्म होगा? तो वो फॉर्म होगा नेबरिंग सेगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो जो नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगा उसके साथ में ये बॉन्ड फॉर्म करता है। Do you understood beta? Alpha helix and the beta plate. Yes, ma'am. Okay. अब यहाँ पर जो है तो बीटा शीट में जो है हमको पैरेलल और एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो आई एम ड्राइंग दैट स्ट्रक्चर सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टूड।
you see this structure? Just observe this structure. Okay, if you observe this structure, so here hydrogen bond, in this first one, what we will see? See, carbon, there is double bond between oxygen, and then here and this nitrogen, it is forming bond with the hydrogen. So in this way, we can see this structure. So this is the anti-parallel structure. So here, this nitrogen which contain this hydrogen, so it will form hydrogen bond. Here also, this hydrogen and this oxygen, it will form hydrogen bond. So and here there is N terminal on one side, and this on second side you will see C terminal. So vice versa will be there. Okay. So what is this parallel and anti-parallel beta sheet structure? So let's see now. Okay. This polypeptide chain in this beta sheet, they may be arranged either in the parallel form, means they will be present either on the same direction, or they may be present opposite, means anti-parallel. Okay. So here I had shown this in this diagram. So this beta sheet, or we can say ki beta pleated sheet, they may be formed by separating polypeptide chain, means hydrogen bonds interchange will be there, or single polypeptide chain that will get folding back. ठीक है, उसका फोल्डिंग बैक हो जाएगा और वो जो है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड? एक बार रिवाइज करिए ना. ये देखो, ये या तो जो है तो पैरेलल रहेगा बिल्कुल सेम डायरेक्शन, या फिर एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल बोले तो पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट है. जैसे देखो यहाँ पर ये जो है तो कार्बन और ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पर क्या है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिख रहा है ना. यहाँ पर देखो ये सेकंड इसमें मैंने दिखाया कि ये जो है तो ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, यहाँ पे क्या दिख रहा है तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर है. ये पैरेलल स्ट्रक्चर है, यानी वन साइड पे नाइट्रोजन है, सेकंड साइड पे क्या है तो कार्बन है. लेकिन कई बार कैसा रहेगा, ये देखो यहाँ पे एन टर्मिनल दिख रहा है, डायरेक्शन दिख रही है इधर सी टर्मिनल की तरफ, यहाँ पर सी टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ एन टर्मिनल, यानी वो क्या है तो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर. अब समझा बेटा? यस मैम. ओके. अब ये बीटा शीट्स जो है तो ये बीटा शीट्स कहाँ पर मिलेंगे, तो वेयर दे विल ऑकर. तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स दे कंटेन बीटा प्लेटेड शीट, एंड यहाँ पर जो है तो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स, तो ये दोनों भी जो है तो सेम प्रोटीन स्ट्रक्चर है. तो ये हमको ग्लोब्युलर प्रोटीन में बीटा शीट्स जो है तो वो कोर स्ट्रक्चर फॉर्म करने का काम करते हैं. ग्लोब्युलर प्रोटीन में क्या काम करेंगे तो ये कोर स्ट्रक्चर, यानी जो इनरमोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है तो वो स्ट्रक्चर फॉर्म करने का काम बीटा शीट करता है. ठीक है. इसके अलावा जो है तो कुछ अदर भी जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं. तो अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर के अलावा बीटा बेंड और नॉन रिपीटेटिव जो है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये भी हमको प्रोटीन में देखने के लिए मिलते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं. तो दिस इज अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अब जो थर्ड स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर कौन सा था तो टर्शरी स्ट्रक्चर. तो नाउ लेट्स सी अबाउट द टर्शरी स्ट्रक्चर. यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, उसी को अपन ने क्या कहा था, टर्शरी स्ट्रक्चर कहा था. तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है. ठीक है. यहाँ पर जो है तो हाइड्रोफोबिक साइड चेन प्रेजेंट है. हाइड्रोफोबिक, फोबिक मीन्स डर, फियर.
हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी वो जो है तो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक साइड चेन which will held internally by the hydrophilic group. अब हाइड्रोफिलिक उसका हाइड्रोफोबिक का अपोजिट हो जाएगा. हाइड्रो मीन्स अगेन वाटर एंड फिलिक मीन्स अटैक, एक अट्रैक्शन और अफेक्शन. तो यहाँ पर वो जो है वो पार्ट कैसा रहेगा, तो दैट विल बी सोल्यूबल इन वाटर. तो हाइड्रोफोबिक साइड चेन दैट विल बी हेल्ड इंटरनली बाय द हाइड्रोफिलिक फिलिक ग्रुप on the surface of this protein molecule. तो ये जो अरेंजमेंट है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा. ठीक है. यहाँ पर जो है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर के जो बॉन्ड्स है वो कौन से रहेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिनेटली इट विल बी प्रेजेंट. बिसाइड दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक interaction means electrostatic bond will be there, hydrophobic interaction will be there, and the van der Waals force also contribute in this tertiary structure of protein. तो इसमें हमको वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स देखने के लिए मिलेंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड वैन डर वाल फोर्स जो है तो ये भी हमको इसमें देखने के लिए मिलेगा. ये यहाँ पर जो है तो डोमेन एक टर्म यूज की जाती है. तो डोमेन ये टर्म कब यूज की जाती है, तो बेसिक यूनिट, प्रोटीन स्ट्रक्चर और फंक्शन, इसके लिए हम डोमेन ये टर्म यूज करते हैं. तो पॉलीपेप्टाइड विथ 200 अमाइनो एसिड दे कंटेन 2 और more than 2 domains. Again I am telling you domain, ये टर्म आपको ध्यान में रखना है. What do you mean by domain? तो डोमेन ये टर्म हम कब यूज करेंगे, when the basic unit of protein structure and function होता है टर्शरी स्ट्रक्चर में, तो उसमें हम डोमेन ये टर्म यूज करते हैं. तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो रहेगी जिसमें 20 अमाइनो एसिड्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, उसमें 2 या 2 से ज्यादा जो है तो डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ द लास्ट स्ट्रक्चर रिमेन, दैट इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स जो है तो ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के बने रहते हैं. कुछ प्रोटीन्स जो है तो उसमें 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है तो वो आइडेंटिफाई की जाती है. तो वो या तो आइडेंटिकल रहेगी, एक जैसे रहेगी, या फिर वो जो है तो अनरिलेटेड भी रह सकती है. तो ऐसे जो प्रोटीन्स है जो आइडेंटिकल या अनरिलेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं उसको हम ओलिगोमर्स कहते हैं. और उसी में हमें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है तो देखने के लिए मिलता है. यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है तो वो मोनोमर, देन प्रोटोमर, या फिर प्रोटोमर का ही हम सब यूनिट्स भी बोलते हैं. डायमर बोले तो, मोनो बोले तो 1, डाई 2. तो डायमर अगर है तो वहां पर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहेगी. टेट्रामर बोलेंगे तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स वहां पर जो है तो प्रेजेंट होती है. इस तरह से उन्होंने जो है तो जैसे वो जो सब यूनिट्स रहेंगे वो सब यूनिट्स में कितने जो है तो ग्रुप्स है उस हिसाब से इसको कैटेगराइज किया जाता है. ओके. तो बॉन्ड जो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से रहेंगे, तो यहाँ पर जो है मोनोमेरिक सब यूनिट्स जो है, अगर वो मोनोमेरिक सब यूनिट है तो दे विल बी हेल्ड विथ ईच अदर बाय द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड. अब नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, या आयोनिक बॉन्ड्स जो है तो उनको हम कहते हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. ये जो ओलिगोमेट्रिक प्रोटीन्स है, ओलिगोमेट्रिक्स प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स जो है तो इनका सिग्निफिकेंट रोल होता है. इसमें तो दे हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. जितना भी हमारे बॉडी में सेल के फंक्शंस और मेटाबॉलिक फंक्शंस है तो दे आर ऑल कंट्रोल बाय
और they are performed by oligometric proteins. ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स जो है, तो इसके एग्जांपल हम दे सकते हैं। जो हम लोगों के ब्लड में एक प्रोटीन प्रेजेंट है एंड ड्यू टू विच Hemoglobin. yes the blood is red in color, that is the hemoglobin. उसके बाद में एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज, ये जो एंजाइम है, तो ऑल एंजाइम्स दे आर प्रोटीन इन नेचर, हम लोगों को पता है वो भी। उसके बाद में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है, तो these are the examples of oligomeric proteins. समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ पर जो है जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है तो बॉन्ड्स है, तो वो जो बॉन्ड है इसको कैटेगराइज किया गया है टू टाइप्स में। वन इज कोवैलेंट एंड द सेकंड इज नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो पेप्टाइड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है, तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर में वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स और है, तो इन ये जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड के तौर पर अगर है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड में क्या रहेगा, यहाँ पर जो है ये फॉर्म होंगे सेल्फ हाइड्रिल ग्रुप से, और दो सिस्टीन रेसिड्यूज जो है तो अपने को यहाँ पे दिखेंगे, जो कि सिस्टाइन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से भी बन सकते हैं या फिर अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन से भी बन सकते हैं। तो ये बॉन्ड्स जो है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन जो है वो भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। जिसमें मैंने क्या कहा कि ये कैसे फॉर्म होगा, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड में एक तो ये ध्यान में रखना कि सेल्फ हाइड्रिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट रहेगा, और फिर वो जो है तो सिस्टीन रेसिड्यू बनाएगा, सिस्टीन रेसिड्यू से सिस्टाइन बनेगा। उसके बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है तो ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से भी बनेगा या दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन से भी ये बनता है। देन नॉन कोवैलेंट बॉन्ड में कौन कौन सा आएगा, तो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड में सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है तो ये हाइड्रोजन एटम जो है तो नाइट्रोजन और कार्बोक्सिल ऑक्सीजन जो है अलग अलग पेप्टाइड बॉन्ड से बनाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर भी दिखाया था, देखो ऑक्सीजन जो कि कार्बन से अटैच है और नाइट्रोजन जो कि हाइड्रोजन को अटैच है, तो इससे ये बनेगा। तो हर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन एक सिंगल अगर हम कंसिडर करते हैं तो दैट इज वेरी वीक, लेकिन हम जैसे कलेक्टिवली हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसिडर करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, तो नॉन पोलर साइड चेन जो है जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है उसका, तो वो एक दूसरे से एसोसिएटेड रहते हैं। अब यहाँ पर जो है तो ट्रू बॉन्ड नहीं रहता, और ये हाइड्रोफोबिक फोर्स जो है तो ये एक्वस एनवायरनमेंट में ही हमको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर जो है तो मॉलिक्यूल्स ये जो है एक दूसरे को अटैच रहेंगे। तो यहाँ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ये नॉन पोलर साइड जो है न्यूट्रल अमाइनो एसिड का, यहाँ हमको क्लोजली एसोसिएट में देखने के लिए मिलेगा, और इसका ऑकरेंस जो है तो वो हमको एक्वस एनवायरनमेंट में ही देखने के लिए मिलेगा। तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो है तो ये बॉन्ड जब नेगेटिव चार्ज ग्रुप यानी COO जो है तो वो ग्रुप जब एसिडिक यानी ये एसिडिक ग्रुप है, तो अमाइनो एसिड के साथ में जब अमाइन ग्रुप NH3 के साथ में कंबाइन होगा तो वो बेस है।
तो ये एसिड और बेस इसकी जब जैसे रिएक्शन होगी या बॉन्ड बनेगा तो वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं ना कि यहाँ पर जो है देखो जो अमाइनो एसिड होता है तो लास्ट में NH3 पॉजिटिव है और इधर जो है तो COO नेगेटिव है। तो ये दोनों जो एंड है तो ये दोनों एंड से जब बॉन्ड बनता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहेंगे। ओके, यानी कटायन और अनायन से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहेंगे। अब लास्ट जो बचा है वो है वांडर वाल्स फोर्स। अब ये वांडर वाल्स फोर्स क्या है? तो ये जो है तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बनते हैं। ठीक है, ये जो है तो परमानेंटली या इंड्यूस फॉर्म में जो है तो जब दो पोल्स रहेंगे तो उस समय में बनते। तो अगेन आई एम टेलिंग यू द बॉन्ड्स which are present in the protein structure, so they are of two type I had told you. One is covalent, another is non covalent. तो कोवेलेंट में हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड का बताया, नॉन कोवेलेंट में 4 बताए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोफोबिक, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक और चौथा बताया अपन ने वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस। डू यू अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now the next part that we will study tomorrow. Okay, यहाँ पर एक आध दो एग्जाम्पल्स लेके हम जो है थोड़ा एक्सप्लेनिंग करेंगे, then we will see about the properties of the proteins and then what is denaturation वगैरह, ये सारे पार्ट जो हैं तो हम कर पाएंगे। I hope you understood this one. समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. Okay. Okay, thank you, bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.